Welcome. Next topic is binary search tree. Binary search tree is a kind of binary tree. A binary tree is called as binary search tree if each node value of that tree is greater than every value in left subtree and node value is less than every value in right subtree. Okay, this is for distinct values means जब सारी values क्या हो अलग अलग हो. If we allowing duplicate values, then the definition will be each node value is greater than from every value in left subtree and the node value is less than or equals to the every value in right subtree. There are two benefits of the binary search tree. First, search running time is just log to n, that is of the sorted linear array, and easy to insert and delete element, that is as in linked list. Whereas in sorted array, the insert and delete procedure takes many time, and in linked list, the searching procedure takes greater time than in or than log to n. Next is draw BST. So see, this is an example how to draw binary search tree. There are some elements given 38, 14, 56, 8 and so on. So pick first one element, that is 38, and 38 will be the root of binary tree. Next one, that is 14. Compare this one with the root, and it is less than from the root one. So it will be added to the left of the root. Clear? Then pick next one, that is 56. Compare with root first one, and it is greater than the root value, so it goes to the right of the root, that is 56. Next one is 8. First compare with root, it is less than 38, so go to the left part. Okay, and left subtree again contains an element, that is 14. Compare it with 14, and it is again less than 14, so it will be add at the position left of the 14. Next one is 23. Compare first one with 38, go to the left of the 38, then comparing with 14, 23 is greater than 14, so it will be add at the right of the 14 here. Next one is 45. First one comparing with the 38, greater than 38, so go to the right part. Then again comparing with 56, and 45 is less than 56, so it will be add at the position left of the 56 here. Next one is 82. Compare first one with root 38, and 82 is greater than 38, so go to the right. Again compare with 56, 82 is also greater than 56, so it will be add at the position right of the 56. Next one is 18. Start comparing with root. Okay, so 18 is less than 38, 18 is greater than 14, and 18 is less than 23, so it will be add at the position left of the 23. And last one is 70.
It is greater than 38, it is greater than 56, but it is less than 82. So it will be add at the position left of the 82. So see how the binary search tree is drawn. So first one element always uh, become root of your binary search tree. Then is next one element coming comparing with the root one, and so next one, whenever a left subtree or right subtree meets at the appropriate position, it will be added according to the rule, that is left is less than from your node and right is greater than from your node value. Okay, so if we are allowing duplicate values, so how it will be added? See example, let's example 23, and one more element we pick, that is 56. So first add 23. How to insert 23? First comparing with root, so always comparison will be start from the root. Okay, so 23 is less than 38, so 23 is less than 38, so we have to go left of the subtree. Okay, then comparing with the next one node, that is node value, that is 14. Okay, and 23 is greater than 14, so go to the right of the this subtree. Okay, next one node value, that is 23, and 23 is equivalent to the 23. Okay, so according to the rule, whenever the node value is equivalent to the any value, then it will be go to the right subtree of that tree. So there will be added, it will be added at the right subtree, and right subtree is empty, so it will be added at the position right of the your 23. Okay, next one is 56. Start comparing with 38, it is greater than, okay, and it is equals to the 56, so go to the right. Okay, and at the right again there is an element 82, and 56 is less than 82, and 56 is again less than 70, so it will be add at the position left of the 70 here. Okay, so next is BST operations, or operations on binary search tree. So there are four common operations to be performed. First is traversing, second searching, third inserting an element, fourth deleting an element from binary search tree. So first of all, traversing. So because of it's a binary tree, binary search tree is a binary tree. So traversing operations is traversing operation is same as for binary tree. There are three order traversal possible. First, pre-order. Second is in order, and third is post order. But here one unique thing, that is the in order traversal of binary search tree will give you ascending ordered element. Okay, see how? Let example traverse in order of following binary search tree, in order traversal, and it will give the ascending order or the increasing order of the elements or node values. So start from the root, okay, 30th, go to the left and again go to the left. So first of all element, that is 8, next one that is 14, then go to the right of the 14, that is 10 and 23, then the root of
our binary search tree, that is 38. Then go to the right and again subtree. So first left 46 45, then the root itself, that is 56. Then go to the right subtree of the 56, that is 70, and last one, that is 82. So see, 8 14, this is 18. Okay, 8 14 18 23 38 45 56 70 and 82. So one unique thing, that is the in order traversal of the binary search tree will give the ascending order or the increasing order values of the elements. Okay, and pre and post order are the traversal as in binary search tree. Okay. Next operations are searching, and next is coming, that is इंसर्टिंग. यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेशन है सर्चिंग और उसके बाद है इंसर्टिंग. सर्च और इंसर्ट दोनों ही ऑपरेशन को एक साथ डिस्कस करेंगे और ये कंसिडर कर रहे हैं कि वी ओनली अलाउ डिस्टिंक्ट वैल्यूज, सो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं कर रहे हैं. जब भी किसी एलिमेंट को सर्च करेंगे, अगर वो फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट प्लेस आपको फाइंड आउट होगा वहां पर उसे क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा. सो सर्च और इंसर्ट दोनों ही ऑपरेशन को एक साथ डिस्कस करते हैं. और फॉर एग्जांपल वी वांट टू इंसर्ट एन यूनिक एलिमेंट, दैट इज 20. सो फर्स्ट क्या होगा, इसके लिए सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होगा एंड सर्च ऑपरेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रूट, रूट से स्टार्ट होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंपैरिजन रूट की वैल्यू से किया जाएगा. सो आइटम वैल्यू हियर इज गिवन, दैट इज 20, और इसे क्या करना है, इंसर्ट करना है, और इसी के साथ क्या करेंगे, सर्च ऑपरेशन भी देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम वैल्यू को रूट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, क्या वो इसके इक्विवेलेंट है. सो अगर वो एग्जिस्ट करेगा आपकी बाइनरी सर्च ट्री में, सो उसे इंसर्ट नहीं करेंगे, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट आपको लोकेशन फाइंड आउट होगी वहां पर उसे क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा. सो कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युअली अपन इसे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रूट वैल्यू से कंपेयर करते हैं. ओके, क्या रूट वैल्यू के इक्विवेलेंट है आपका आइटम वैल्यू, नहीं है, नॉट इक्वल्स. सो क्या करना होगा, आइदर सर्च इन द लेफ्ट पार्ट और इन द राइट पार्ट ऑफ सर्च लेफ्ट बाइनरी सर्च ट्री. सो या तो लेफ्ट पार्ट की तरफ सर्च करना होगा या राइट पार्ट की तरफ. सो अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट कंपैरिजन इज, क्या रूट वैल्यू से लेस देन है, इज योर आइटम वैल्यू इज लेस देन, is item value is item value is less than the node or root itself. Okay, अगर रूट वैल्यू से क्या है आपका आइटम वैल्यू लेसर है, इट मींस किस तरफ सर्च करेंगे, इसे लेफ्ट पार्ट की तरफ सर्च करेंगे. सो 38 से लेस देन है. ओके, सो किस तरफ सर्च करेंगे, इसे लेफ्ट की तरफ. नेक्स्ट वन वैल्यू आपको क्या पिक हुआ, 14. ओके, क्या इसके इक्विवेलेंट है, नहीं है. ओके, तो 14 के भी इक्विवेलेंट नहीं है, और इस बार किस तरफ सर्च करना होगा, क्या 14 से लेस देन है, नहीं, 14 से लेस देन नहीं है. तो जब भी क्या होगा, रूट से कंपेयर किया, इक्वल नहीं है तो क्या लेस देन है. ओके, अगर लेस देन है तो लेफ्ट पार्ट की तरफ सर्च करेंगे, और ग्रेटर है तो राइट पार्ट की तरफ सर्च करेंगे. ओके, सो इक्वल नहीं है और लेस देन भी नहीं है, सो किस तरफ सर्च करेंगे, इस बार राइट पार्ट की तरफ सर्च करेंगे. देन अगेन 23 से क्या है, वो लेस देन है, इट मींस किस तरफ सर्च करेंगे, उसे लेफ्ट पार्ट की तरफ सर्च करेंगे, और नाउ क्या मिला, 18 मिला. ओके, सो 23 के भी इक्वलेंट नहीं है और 18 के भी इक्वलेंट नहीं है. और अब आप देखते हैं कि 18 से लेस देन नहीं है, सो किस तरफ सर्च करना होगा, राइट की तरफ. लेकिन जब आप देख रहे हैं कि क्या राइट की तरफ कोई एलिमेंट है, नहीं है, इट मींस इसे कहाँ ऐड किया जाएगा, एट द राइट पोजीशन और राइट एम्प्टी सब ट्री ऑफ द 18. ओके, सो इट विल बी एड एट द पोजीशन राइट चाइल्ड ऑफ द 18. तो क्या करना होगा, इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिमेंट गिवन है उसे सर्च करेंगे, अगर वो फाइंड आउट हो जाता है तो उसे इंसर्ट नहीं करेंगे. ओके, और अगर वो फाइंड आउट नहीं होता है तो ये सर्च ऑपरेशन कहाँ जाके स्टॉप होगा, या तो लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री पर जाके क्या होगा, ये स्टॉप होगा. सो इफ आइटम एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, देन
search procedure will be stopped at the empty subtree, at the empty subtree, लेफ्ट हो सकता है या फिर राइट सबट्री, क्लियर है। और जहां ये प्रोसीजर स्टॉप होगा वही उसकी पोजीशन होगी अप्रोप्रिएट जहां पर उसे इंसर्ट किया जाएगा। तो 20 को कहां इंसर्ट किया जाएगा? एट दी राइट लेफ्ट सबट्री ऑफ दी 18 एंड इट विल बी एडेड हियर। नाउ इंसर्ट ऑपरेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके तो जब भी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा? सर्च ऑपरेशन, या मुझे सर्चिंग करना होगा कि क्या वो एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। और सर्चिंग प्रोसीजर से ही मुझे क्या फाइंड आउट होगा? मुझे पेरेंट और उसका लोकेशन, मुझे वेरिएबल लेने होंगे, क्लियर है। लोकेशन जब वो फाइंड आउट हो जाएगा तो लोकेशन क्लियर है। तो इफ एलओसी नॉट नल देन मुझे उसे इंसर्ट नहीं करना है, क्लियर है। और अगर एलओसी नल है, ओके, सो मुझे कहाँ इंसर्ट करना है? आइदर टू द लेफ्ट ऑफ द पेरेंट और राइट ऑफ द पेरेंट, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मुझे इंसर्ट करना है। तो मुझे सर्चिंग प्रोसीजर मुझे फॉलो करना होगा उस आइटम के लिए, और मुझे उसे बाइनरी सर्च ट्री में सर्च करना होगा, क्लियर है। अगर मुझे वो फाइंड आउट हो जाता है इफ एलओसी नॉट नल, ओके, देन मुझे उसे इंसर्ट नहीं करना बिकॉज ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्ट। एल्स इफ एलओसी नल देन मुझे कहाँ इंसर्ट करना होगा? टू दी लेफ्ट और राइट ऑफ दी पेरेंट, या तो लेफ्ट या फिर एज ए राइट चाइल्ड ऑफ दी पेरेंट। एंड इफ पेरेंट इक्वल्स टू नल एंड एलओसी ऑल्सो इक्वल्स टू नल, इट मीन्स वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और बाइनरी ट्री भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बाइनरी सर्च ट्री पूरी तरीके से क्या है? एम्प्टी है। सो देर आर some cases. First case is if empty bst, okay, then par will be null, okay, and loc also null. So the item value will be inserted at the root position or root location. Just assume the first one element comes to insert, that is 38. so जब आपके पास बाइनरी सर्च ट्री में कोई भी एलिमेंट नहीं है, so उसे क्या बनाया गया? रूट बनाया गया, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज इफ LOC not null then already exist, okay। and third one LOC null, LOC null, LOC equals to null, but PAR not equals to null, then the item will be added to the left or right of the parent. Item will be added to the left or right to be of the parent. For example, वैल्यू आइटम 20 को इंसर्ट करना है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए सर्चिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा, और वो सर्चिंग प्रोसीजर रूट से स्टार्ट होगा, ओके। सर्चिंग प्रोसीजर दैट इज वो आइटम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके। और ये प्रोसीजर कहाँ जाके स्टॉप होगा? या तो वो आइटम फाइंड आउट हो जाएगा, ओके, सो वो एलओसी फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। नहीं तो ये प्रोसीजर कहाँ जाके स्टॉप होगा? किसी एम्प्टी सब ट्री पे, आइदर लेफ्ट और राइट, ओके। फॉर एग्जांपल वैल्यू 20 को इंसर्ट करना है, 38 के इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है, और वैल्यू 20 इज लेस देन फ्रॉम 38, सो सर्चिंग प्रोसीजर लेफ्ट की तरफ प्रोसीड होगा। और उसके बाद 14 से ग्रेटर है 20 वैल्यू, सो अगेन राइट, ओके। सो इस तरीके से सर्चिंग प्रोसीजर चलेगा इस तरफ। देन 23 से क्या है? वो लेस देन है, ओके, बट 18 से वो क्या है? ग्रेटर है। सो जब आप कंपेयर कर रहे हैं कि क्या 18 का राइट, ओके, क्या 18 का राइट है? 18 का राइट नहीं है। 18 का जो राइट है बेसिकली राइट चाइल्ड, वो क्या है?
एक नल चाइल्ड है, दैट इज राइट एम्प्टी सब ट्री आपको मिला, तो यहाँ पर नल आपको मिल रहा है, राइट सब ट्री एम्प्टी है। इट मीन्स 20 को कहाँ पर इंसर्ट करना चाहिए, एट दी राइट पोजिशन ऑफ द 18। सो जब सर्च प्रोसीजर स्टार्ट किया तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रूट से कंपेयर कर लिया। यहाँ पर अगर आपको फाइंड आउट नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, तो दो पॉइंटर लिए जाएंगे, सेव और पीटीआर, सेव और पीटीआर। ओके, सेव को किसे इनिशियलाइज किया जाएगा, रूट से, और पीटीआर को किसे इनिशियलाइज करेंगे, आइदर लेफ्ट और राइट ऑफ द पीटीआर। ओके, इफ योर आइटम वैल्यू इज लेस देन योर रूट वैल्यू, ओके, रूट वैल्यू दैट इज 38, तो उस केस में क्या करेंगे, पीटीआर को लेफ्ट ऑफ द पीटीआर से क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। एल्स किससे इनिशियलाइज करते हैं इसको, राइट ऑफ द पीटीआर से इनिशियलाइज करते हैं। ओके, तो जब ये लेफ्ट ऑफ द पीटीआर से क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ द रूट, सॉरी, लेफ्ट ऑफ द रूट से इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से यही सेम प्रोसीजर कि क्या वो उस नोड वैल्यू के इक्विवेलेंट है, नोड वैल्यू के इक्विवेलेंट है तो वो प्रोसीजर वहीं स्टॉप हो जाएगा, नहीं तो या तो लेफ्ट की तरफ बढ़ना है या राइट की तरफ, तो पीटीआर क्या हो जाएगा, फिर से अपडेट हो जाएगा। तो हियर क्या हुआ, आपको 14 का आपको लोकेशन मिल गया, आप 14 से 20 को कंपेयर किया, 14 20 नॉट इक्वल है, तो उस केस में क्या हुआ, नेक्स्ट कंपैरिजन की, क्या वैल्यू 20 लेस देन है, लेस देन भी नहीं है। ओके, लेस देन नहीं है तो किस तरफ बढ़ेंगे आप, पीटीआर विल बी अपडेटेड फ्रॉम द राइट ऑफ द पीटीआर। ओके, देन अगेन फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द पीटीआर, एंड सो सेव और पीटीआर क्या होंगे, कंटिन्यूसली अपडेट होंगे। यहाँ पर सेव रूट है, ओके, पीटीआर क्या हो गया, 14 हो गया। देन सेव क्या हो जाएगा, आगे जब आप बढ़ेंगे तो सेव क्या हो जाएगा, करंटली 14, और पीटीआर क्या हो जाएगा आपके लिए 23। और नेक्स्ट वन में क्या हो जाएगा, जब आप नेक्स्ट पीटीआर या अपडेट अपडेट हुआ है पीटीआर, तब सेव क्या हो जाएगा आपके लिए 23, और पीटीआर में किसका लोकेशन होगा आपके पास, 18 का लोकेशन। एट लास्ट क्या होगा, सेव जो पर्टिकुलर पॉइंटर है, ओके, उसमें आपके पास 18 का लोकेशन होगा, और पीटीआर क्या हो चुका होगा, नल। ओके, दैट इज नल। सो save is the location of the parent for our item, okay, and ptr is the location, okay, we can say location, और loc क्या रहा, null रहा, और parent आपको find out हुआ, that is 18। now मुझे insert करना है, क्लियर है, तो इंसर्ट में दो ही केस होंगे मेरे पास, क्लियर है। फर्स्ट, क्या वो एम्प्टी सब ट्री है, और दूसरा क्या मुझे उसे इंसर्ट करना है या नहीं करना है, क्लियर है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मुझे इंसर्ट नहीं करना है, और दूसरा, क्या मुझे उसे एज ए रूट इंसर्ट करना है, या मुझे एज ए कोई पेरेंट लोकेशन है और उसके लेफ्ट या राइट की तरफ मुझे उसे इंसर्ट करना है, क्लियर है। सो फर्स्ट, एम्प्टी सब ट्री नहीं है, दूसरा लोकेशन भी नल, नॉट नल, नल है बेसिकली, क्लियर है। सो मुझे उसे इंसर्ट करना है, तो कहां पर इंसर्ट होगा, मुझे क्या करना होगा, इन्फो ऑफ पी ए आर से कंपेरिजन होगा, ठीक है। इफ द इन्फो ऑफ पी ए आर इज ग्रेटर देन योर आइटम वैल्यू, इन्फो पी आर दैट इज 18 इज ग्रेटर देन 20, क्लियर है। क्या ये ग्रेटर है, अगर ये है तो फिर मुझे किस तरफ इंसर्ट करना होगा, लेफ्ट ऑफ द पी ए आर, ठीक है। एल्स मुझे किस तरफ इंसर्ट करना होगा, मुझे इसे राइट ऑफ द पी आर। सो यहाँ पर 18 वैल्यू क्या है, पेरेंट वैल्यू क्या है, लेस देन है, तो नॉट वैल्यू ग्रेटर है, तो मुझे उसे किस तरफ इंसर्ट करना होगा, एट द राइट ऑफ द पी आर, क्लियर। सो उसे किस तरफ इंसर्ट किया जाएगा, राइट ऑफ द पी आर।